Good morning, dear students. Today we are going to solve first test related to life processes. Okay, let me start. So this is the first question. Define the life processes with example. Life processes means the different activities present in living beings are called as life processes. We can say these are the different we can say on the basis of the activities when life is sustained on the earth, the process is called as life processes. So many examples of these: nutrition, excretion, respiration, digestion, control and coordination, etc. are the examples of different life processes. What is nutrient? The second question. What is nutrition? Nutrition is the process by which an organism obtains such substances to utilize and produce the energy, and such energy will be used by organism for its growth and development. The process is called as nutrient, and such substance which is utilized for production of energy is called as nutrient. Okay, so question number 3, what do you mean by nutrient? Write different classes of nutrients. So अभी हमने न्यूट्रिएंट को डिफाइन किया है, हम बात करते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो डिफरेंट क्लासेस, it may be regulatory, it may be energy producing, it may be defensive. So different categories we have already been discussed in that particular part 1. उनको एक बार देख लीजिए और आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4, why proteins are called as body building blocks? Because of proteins are responsible for making of new tissues, that's why they are called as body building blocks. They are responsible for growth and development also. Growth and development to make new tissues, or we can say if any tissue of our body will be damaged, new tissue will be formed by the proteins. So that's why they are called as body building blocks. Define autotrophic and heterotrophic nutrition with example. Autotrophic, auto means self. Whenever organism produces its food by itself, the process is called as autotrophic nutrition. But in case of heterotrophic nutrition, when organism depends on other for getting its food, the process is called as heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, we can give the example of all the green plants and photosynthetic bacteria. Those produce their food with the help of photosynthesis, where heterotrophic nutrition further can be classified into 3 categories. One is holozoic nutrition, saprophytic nutrition, and parasitic nutrition. Human being is the best example of holozoic nutrition. Saprophytic nutrition, rhizopus, you can give the example of this rhizopus mushroom fungi. And parasitic nutrition, you can give the example of Cascuta is a plant parasite, and Plasmodium, that is the animal parasite. It may be classified into endo and exo parasite. Whenever a parasite enter into the body of host and will obtain the food nutrition, then it is called as endoparasite. And whenever the organism remain outside of the host body and get the food, then it is called as exoparasite. Okay. So next question is, what is the difference between holozoic, saprophytic and parasitic nutrition? Holozoic nutrition, you know very well about this. When organism takes solid food, and this solid food
food will be digested inside the alimentary canal but outside of the cell. ठीक है, such kind of digestion is called as extracellular digestion or intercellular digestion. ठीक है, ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग अपने बारे में महसूस करें आप कि आप एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है। आप सॉलिड फूड को लेंगे, उसको माउथ में रखेंगे, उसको च्युइंग करेंगे, उसको स्टोमक तक पहुंचाएंगे। स्टोमक में फर्दर उसका डाइजेशन, और कुछ डाइजेशन तो बक्कल कैविटी में ही हो गया, फिर स्टोमक में होगा, फिर इंटेस्टाइन में होगा। तो दिस इज़ द पार्ट, दीज आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर डाइजेशन होता है, लेकिन ये सेल्स के बाहर होता है, इन बिटवीन द डिफरेंट सेल्स होता है। तो सेल के बाहर इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। इन बिटवीन द सेल है इसका मतलब, इसलिए इसको इंटरसेलुलर डाइजेशन कहेंगे। तो इस तरीके का डाइजेशन यदि होता है या तो इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके का न्यूट्रिशन तो होलोजोइक। सेप्रोफिटिक, सेप्रो का मतलब होता है डेड रोटेन थिंग्स। whenever organisms obtain its food by dead rotten things then it is called as saprophytic nutrition। लेकिन यहाँ पर क्या बात है, यहाँ हमने डिस्कस किया था जो भी सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म हो, जैसे मशरूम के बारे में हमने बात की थी, तो वो क्या करता है कि वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डेड रोटेन थिंग्स के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट कर देगा। फिर इस डेड रोटेन थिंग का डाइजेशन हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में ही आ जाएगा। देन इट will be absorbed by the mycelium, या we can say rhizopus इसको absorb कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके का न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा। लेकिन हम बात करें पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट जो होता है वो अपने होस्ट से डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए पैरासाइट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक होता है, बिकॉज ऑफ इट नॉट रिक्वायर्ड फर्दर डाइजेशन द फूड, क्योंकि वो अपने होस्ट से अप्रॉक्सीमेट डाइजेस्ट फूड को ही लेता है। ठीक है, और वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही लेगा। किस फॉर्म में लेगा? लिक्विड फॉर्म में ही लेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन? गिव वन एग्जाम्पल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम बात करें एक लेग्यूमिनस प्लांट की। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब ये वो जो फलीदार पौधे हैं। ठीक है, इसमें सोयाबीन भी हो सकता है, चना भी हो सकता है, मटर भी हो सकता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट, और उसकी रूट नोड्यूल से उसकी जो रूट होती है, उन रूट में नोड्यूल होता है, मतलब रूट में कुछ गांठें होती है इस तरीके से। ठीक है, इन गांठों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड NH3 या NO2 माइनस या NO3 माइनस, है ना, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में, यानी कि ये गैसियस फॉर्म को कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट को प्रोवाइड कर देता है। प्लांट को, लेग्यूमिनस प्लांट को दे देगा, और लेग्यूमिनस प्लांट बदले में इस राइजोबियम बैक्टीरिया को कुछ न्यूट्रिएंट दे देता है और रहने के लिए घर दे देता है, शेल्टर दे देता है। तो इन दिस कंडीशन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड प्लांट गेट प्रॉफिट फ्रॉम ईच अदर। ओके, दोनों एक दूसरे से प्रॉफिट लेते हैं कि इस लेग्यूमिनस प्लांट को तो नाइट्रोजन मिल जाता है, यानी कि नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल जाता है, जिससे ये अपने अमाइनो एसिड बना लेता है, अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन्स बना लेता है, अपने नए टिश्यूज़ बना लेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आएगा वो टिश्यू। ठीक है, और बदले में इस राइजोबियम बैक्टीरिया को, जो कि इस रूट नोडुल के अंदर है, इसको न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, और न्यूट्रिएंट के साथ में इसको क्या मिल जाएगा? शेल्टर मिल जाएगा रहने के लिए। तो सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएट टुगेदर या इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड बोथ गेट प्रॉफिट फ्रॉम ईच अदर, सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, और वी कैन से म्यूचुअलिज्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब हुआ लाइट एंड सिंथेसिस टू मेक। So this is the process by which green plants prepare their food in the presence of sunlight is called as photosynthesis। इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन लिखेंगे आप तो लिखेंगे 6CO2 + 12H2O लिखेंगे +12H2O। ठीक है, in the presence of light and chlorophyll plant will prepare C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट +6O2
6O2 plus 6CO2 plus 6H2O, ठीक है. So these are the oxygen and water are the byproduct, and this carbohydrate C6H12O6 is the main product of the photosynthesis. Okay, so these are the 4 raw materials: carbon dioxide, water, light and chlorophyll are the raw material for photosynthesis. Okay, so this is what photosynthesis. You can give the example of any green plants and photosynthetic bacteria. Name the raw materials required for photosynthesis. So the carbon dioxide, water molecule, light and chlorophyll are the raw materials for photosynthesis. Okay, write the 3 differences between anabolism and catabolism. Anabolism and catabolism हमने ये इस फर्स्ट पार्ट के पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था. यहाँ पर आप एक तरफ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख लेंगे, एक तरफ आप रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिख लेंगे. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है CO2 एंड H2O, ये आपस में मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वी कैन से C6H12O6. लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो ये एक सिंथेटिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, और ये एक डिसऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है. ठीक है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, और यहाँ पर जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो डिसऑर्गेनाइज होकर स्मॉल मॉलिक्यूल बनाता है. इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है फोटोसिंथेसिस में. जैसे कि आपने ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को बनाने में, एक ग्लूकोज बनाने में 54 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल का लॉस होता है प्लांट को. वहीं रेस्पिरेशन में जब वो ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को कैटाबलाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक करेगा, तो उसको 38 ATP मिलते हैं, प्लस 38 ATP. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. आप उस वीडियो को देखें, वीडियो जिसमें हमने सिर्फ कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के लिए एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाया था, वो देख लीजिए आप इसको एक बार. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. कल आपको एक और टेस्ट दिया जाएगा. टेस्ट इसके बाद वाला जो पोर्शन हमने कवर किया था उससे रिलेटेड, उस वीडियोस को देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और जैसे आपको ये टेस्ट मिलता है पहले बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, और उसके बाद में नेक्स्ट डे जब मैं सोल्यूशन दूंगा तो अपने नोटबुक के साथ मैं जो आंसर बताता हूं उनको आप मैच करें. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और प्रशासन की हेल्प कीजिए. सिर्फ यही कोरोना से लड़ने का एकमात्र साधन है फिलहाल हमारे पास में. बहुत बहुत धन्यवाद.